So we are doing when Z is positive, positive imaginary number, this one. So when Z is only the positive imaginary number, no real part. So no real part on that side, no real part on that side, only positive imaginary number, or it will be drawn over there. So angle will be 90 degree in this case. And there, when Z is only the negative real part, no imaginary part upside, no imaginary part downside, no negative positive real imaginary part, no negative imaginary part, only the negative real part. So it will be drawn over there. So angle will be when Z is negative real part. When Z is negative real part, so theta will be equal to 180 degree. Direct. No need to use tan inverse, etc. The example for that is Z may be negative real part. It may be minus under root 3. It may be minus 4 upon 5, etc. So it must be negative and the real, no imaginary part. So in this case, Z theta will be equal to 180 degree. Now, the fourth one, when you have, when Z is negative imaginary part only, when Z is negative imaginary part only, so it will be over there. The angle in this case is 270 degree. Theta will be equal to 270 degree. No need to choose tan inverse, etc., etc. Directly right. Safir Khan. So when Z is only the negative imaginary part, theta will be equal to 270. The examples for that is minus 5 iota or minus root 2 upon 3 iota, etc. It should be only the imaginary part and should be the negative imaginary part. It should be the negative imaginary part. It should be the negative imaginary part. There is no real part. So angle should be equal to 270 degrees. So this is the all the four cases. Only real part, it may be positive, it may be negative. When it is positive real part, theta will be equal to 0. When it is negative real part, theta will be equal to 180 degree. Imaginary part, positive imaginary part or negative imaginary part only. So in this case, positive imaginary part, theta will be 90 degree. Negative imaginary part, theta will be 270 degree. 1147. So these are the four cases when Z contains only one part,
It may be real, it may be imaginary. So we do not use the tan inverse method, the formula for the first quadrant, second quadrant, third quadrant. That formula will not be used to find the theta. We just directly write theta. When it is on the positive real axis, it will be 0. When it is only positive imaginary axis, the theta will be 90 degree. When it is only negative imaginary negative real axis, it will be 180 degree. When it is negative imaginary axis, it will be 270 degree. So 0, 90, 180, 270 degrees. Theta will be written as it is. In the same case, how to find, now the case is how to find R. How to find R. तो ये आपने याद रखना है, when थीटा जो है, when जब z जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव रियल पार्ट होगा, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तो उसका एंगल 0 होगा. हाफिज सैयद हमजा अली. शाहमीर. इसी तरह जब हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट नहीं होगा, तो हम उसका एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देंगे. और जब हमारे पास नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट होगा, सिर्फ कोई रियल पार्ट नहीं होगा, तो उसका 270 डिग्री एंगल थीटा लिख देंगे. tan इनवर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है उसमें, और ना ले सकते हैं हम. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आर. ये तो थीटा मैंने बता दिया. आर कैसे निकालेंगे? सपोज z इज 4, यहां पर है, तो थीटा तो हो गया इसका 0 डिग्री. आर क्या होगा? देयर इज नो रियल इमेजिनरी पार्ट, सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो 0 लिख दे, ना लिखे डायरेक्ट कर ले. तो 4 स्क्वायर का 16 आ जाएगा, अंडर रूट 16, और उसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा. याद रखिए, पहले इसको आपने ओपन करना है, फिर स्क्वायर रूट लेना. डायरेक्ट स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर देना. स्क्वायर और रूट को डायरेक्ट यहाँ कैंसिल मत कर दीजिएगा. ये मे भी -4 हो तो -4 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं होता. आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखिए. ये केसेस हो जब सिर्फ एक रियल या इमेजिनरी पार्ट हो, या उसमें दोनों पार्ट हो, या उसमें दोनों पार्ट हो, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. आर हमेशा पॉजिटिव रहता है. आर हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो ये सूरत है. आर इस तरह निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा. इसी तरह अगर z हमारे पास नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है, हमारे पास है 3√3 आयोटा, सिर्फ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, यानी 90 डिग्री थीटा है इसमें. आर तो हमारा ये हो गया इसमें, और इसमें थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा. अच्छा, इसमें क्या होगा? आर अंडर रूट का स्क्वायर निकाल लेंगे, अंडर रूट -3 का स्क्वायर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट डाल देंगे. इट विल बिकम, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, अंडर रूट 3, फिर 3r. ये हमारे पास
आंसर आ गया। ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये अंडर रूट में 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहां है ओनली नेगेटिव रियल पार्ट माइनस √3 √5। ये है सपोज हमारे पास रियल है, आयोटा नहीं है इसके साथ, तो ये रियल पार्ट है हमारे पास सिर्फ, और नेगेटिव रियल पार्ट है। नेगेटिव रियल पार्ट होगा तो थीटा तो 180 डिग्री हो जाएगा। आर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे और होल अंडर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया √5। ये माइनस √5 था, यहां हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव √5। तो डायरेक्ट इसको इससे कैंसिल नहीं करना, इसको इससे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव कर देंगे और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो +5 आ जाएगा और ये रूट अपनी जगह रहा। इसी तरह यहां अगर होगा नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास z -1/2 आयोटा। ये नेगेटिव हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये थीटा तो 270 हो गया और r कैसे फाइंड आउट करेंगे? r विल बी इक्वल टू अंडर रूट -1/2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 1/4 विल बी इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इसका आर आ गया। ऑलमोस्ट आर जो है वही होता है जो हमारे पास z का रियल या इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन दे मस्ट बी पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जबकि यहाँ ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव थे दो, लेकिन हेयर वी गॉट द पॉजिटिव। सो आर ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जब सिर्फ एक ही पार्ट होता है तो ऑलमोस्ट द सेम ये आ जाता है। 4 था तो 4 आ गया, √3 था तो √3 आ गया, -√5 था तो पॉजिटिव √5 हो गया, -1/2 था तो पॉजिटिव 1/2 हो गया। सिर्फ पॉजिटिव हो जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट वही होते हैं जो पार्ट्स हैं अपने, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हैं। सो दिस इज द way how to convert any complex number when it is in rectangular form into the polar form or exponential form। थीटा और आर निकालना होता है दोनों में, थीटा और आर मैंने बता दिया, वो लिखना है, सिर्फ फार्मूले में रखना है। So that was how to convert। Now in exercise 17 to 20
फाइंड द पावर्स इन पोलर फॉर्म। इसमें हमने आंसर पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, पोलर फॉर्म में ही हमने आंसर देना है इसका। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म में ही हमने इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17, 3 एंगल 73.3 डिग्री होल पावर 3। हमने इसको इवेल्युएट करना है। 3 एंगल 75.3 डिग्री होल रेज़ टू पावर 10, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसका क्या मतलब है, पोलर फॉर्म ये क्या हो जाएगी, ये पोलर फॉर्म है। इसको अगर इस तरह लिखें, cos 75.3 डिग्री प्लस आयोटा sin 75.3 डिग्री होल रेज़ टू पावर 10। इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई, 3 रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा इंटू cos 75.3 डिग्री इंटू 10 प्लस आयोटा sin 75.3 डिग्री इंटू 10। So 3 raised to power 10, whatever be the answer, तो राइट on that क्या हो जाएगा, और पहले इसको कर लेते हैं। 3 raised to power 10 into cos of 753 डिग्री प्लस आयोटा sin 753 डिग्री। ये पोलर फॉर्म में ही आंसर देना है। ये पोलर फॉर्म में आ गया। यहाँ 3 रेज़ टू पावर 10 चाहे तो आप इसको सॉल्व करके लिख दें। मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। 3 रेज़ टू पावर 10 को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 रेज़ टू पावर 10 59049 59049। ये हमारे पास आंसर आ गया 59049 इंटू कॉस 753 डिग्री प्लस आयोटा साइन 753 डिग्री। और अगर इस फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 59049 एंगल 753 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। अरे मैरीन शेर, okay, so this is the answer. Now the second Demar's theorem. One was for the
One De Morgan's theorem for the power, one De Morgan's theorem for the roots. Now I will write the formula for the roots. De Morgan's theorem for roots. De Morgan's theorem for roots. Z raised to power 1 over n, nth root. Roots के लिए 1 upon nth root 1 upon n is equal to r raised to power 1 over n into cos of 1 over n into theta plus k into 180 degree plus iota sine 1 over n into theta plus k into 180 degree. This is the De Morgan's theorem for roots. For nth root, De Morgan's theorem for nth root, z raised to power 1 over n बेटा ये फार्मूला है ना, मैंने बताया था ना n इंटू थीटा होगा, तो पावर 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की जगह 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1 over n है पावर, सो r रेज टू पावर 1 over n, हियर द z रेज टू पावर 1 over n है, तो ये हो गया r रेज टू पावर 1 over n, z रेज टू पावर 1 over n मीन nth रूट, स्क्वायर रूट होगा तो n की जगह 2 आ जाएगा 1 over 2, क्यूब रूट होगा तो n की जगह 3 आ जाएगा 1 over 3, फोर्थ रूट होगा तो 1 upon 4, फिफ्थ रूट होगा तो 1 upon 5 एक्सेट्रा। रूट्स की बात हो रही है, रूट्स जब होगा 1 upon हो जाएगा, और r रेज टू पावर भी 1 upon n हो जाएगा, और cos थीटा भी 1 upon n से मल्टीप्लाई होगा, और थीटा में k इंटू 180 डिग्री भी ऐड कर देंगे, फिर उसको 1 upon n से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा में k इंटू 180 डिग्री ऐड कर देंगे, और फिर उसको 1 upon n से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आयोटा साइन, उसमें भी थीटा में k इंटू 180 डिग्री ऐड करेंगे और उसको 1 over n से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज k? k विल बी इक्वल टू 0, 1 2 3 up to n minus 1। k की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे 0 से n minus 1 तक, यानी n अगर या आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो n की जगह 2 हो जाएगा 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, और k की जगह पहले 0 रखेंगे फिर 1 रख देंगे, n minus 1 यानी n की जगह 2 लिखा, 2 minus 1
तो 1 आ जाएगा। तो 1 तक हमने k की वैल्यू लेनी होगी, 0 और 1। तो जितना n होगा उतने ही k की वैल्यूज होंगी, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होंगी, इसलिए n-1 रह जाएगा। जैसे अगर ये क्यूब रूट है, इफ वी आर फाइंडिंग क्यूब रूट, सो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहां पे 1/3। तो k की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। 1/3 है तो 3 वैल्यूज रखेंगे हम, यानी n-1 तक, 3-1 तक, 3-1 2 हो जाएगा। तो 2 तक रखेंगे, 0 से लेकर 2 तक। तो जितनी n होगा उतने ही k की वैल्यूज आ जाएंगी। तो डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट हमने आंसर उसके निकालने हैं। तो एक से ज्यादा आंसर होंगे, क्योंकि पहले जो हमने n पावर वाले किए उसमें हमारे पास सिर्फ एक आंसर आता था, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा आंसर होंगे। देयर मस्ट बी मोर देन 1 आंसर। अगर ये स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, 1/2 ले ले रहे हैं, देयर शुड बी 2 आंसर। एक 0 पर रखने से होगा, एक 1 रखने पर होगा। अगर हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो देयर शुड बी 3 आंसर्स, एक 0 पर आएगा, एक 1 पर, एक 2 पर। अगर हम फोर्थ रूट ले रहे हैं तो 4 आंसर्स होंगे, 0 1 2 3 तक, k की वैल्यू ये रखने पर आएंगे। तो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन, तो उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। The same exercise we are doing. The same exercise we are doing. Question number 21. In question 21 to 28, find the indicated roots. Roots हमने निकालने, express the result in exact rectangular form. तो हमने उसके आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देने हैं। 21 से 28 तक जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्यूब रूट्स ऑफ 1। 1 का क्यूब रूट निकालना है। 1 का क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। We will find the cube roots of 1. Question number 21. Question number 21. Cube roots of 1. ये हमने फाइंड आउट करना है। तो z इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। z इज इक्वल टू 1। Z is equal to 1, so this is the real part only. There is no negative, there is no imaginary parts. So when there is only positive real part, theta will be equal to 0. So theta is equal to 0. First we find r. R will be equal to under root 1 square. Will be equal to under root 1, and the answer is 1. 1 स्क्वायर 1 हो गया, अंडर रूट अपनी जगह रहा और अंडर रूट 1 का 1 आ गया। और थीटा इसमें क्या आ गया हमारे पास, विल बी 0 डिग्री। जब Z1 हम इसको अगर ड्रॉ करें तो इस किस्म का बनेगा। रियल पार्ट है सिर्फ
पॉजिटिव रियल पार्ट पॉजिटिव एक्सिस पर यहां 1 आ जाएगा। दिस इज 1। तो ये हमारे पास 0 एंगल आ गया। यहां पर 0 बनता है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री और यहां पर 270 डिग्री। ये एंगल बनते हैं एक्सिस पर जब होगा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो थीटा 0 हो गया, r 1 हो गया, तो हमारे पास z क्या आ गया? r इंटू cos of 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में आ गया। अब हम इसका रूट निकालते हैं, क्यूब रूट यानी 1/3। क्यूब रूट्स मींस 1/3, तो z रेज टू पावर 1/3। वन रेज टू पावर 1/3 into cos of 1/3 into theta 0 degree plus k into 360 degree, sorry k 360 degree है 180 degree। सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया था, k इंटू 360 डिग्री, k 2 पाई होता है, k इंटू 360 डिग्री प्लस आयोटा साइन 1/3 इंटू 0 डिग्री k इंटू 360 डिग्री। ये हमारे पास इसको ये हमने कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी और इसको भी 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z रेज़ टू पावर 1/3, 1 रेज़ टू पावर 1/3 तो 1 ही रहेगा और 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द सेम। 1/3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 120 डिग्री हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 0 प्लस और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा साइन 1/3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और k इंटू 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 120 डिग्री। ये हमारे पास k की फॉर्म में इसके रूट्स आ गए, फार्मूला आ गया। अब मैंने बताया कि k की वैल्यू हम 0 से लेकर 2 तक लेंगे, n-1 तक। n है हमारे पास 3 minus 1 will be 2, तो 0 से 2 तक हम इसका n की वैल्यू लेंगे, k की वैल्यू। तो when k is equal to 0, k 0 हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहां लिख देंगे z0 रेज़ टू पावर 1/3। जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, z0 रेज़ टू पावर 1/3। z0 रेज़ टू पावर 1/3, ये z था, z रेज़ टू पावर 1/3 k की फॉर्म। जब k की वैल्यू हमने चेंज की 0 रखा तो z0 रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा और that will be equal to cos 0 into 120। डॉट नहीं लिखना, डॉट का मतलब डेसिमल हो जाएगा, फिर वो यहां डॉट लिख सकते हैं जब तक ये नंबर्स नहीं है, ए बी सी डी वगैरह है। जब तक ये नंबर्स नहीं है, ए बी सी डी वगैरह है, तो ये हम
डॉट लिख सकते हैं, डॉट ना भी लिखिए, एक्स है, ये दोनों नंबर एक्स वाई एक्स है तो एक्स लिख देंगे, एन है तो एन लिख देंगे, डॉट भी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये नंबर आएगा तो नंबर हम यहाँ बगैर क्रॉस के डॉट लिखेंगे तो डेसिमल समझा जाएगा, 1.120 हो जाएगा, और कोई नंबर नहीं डालेंगे तो वो फिर वो नंबर वैसे ही हो जाएगा। इसी तरह यहां हो जाएगा, के की जगह हमने 0 पुट कर दिया, so that will become z0 raised to power 1 over 3 cos 0 plus iota sin 0। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें, cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, so it will be 1 plus 0 sin 0 0 होगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, z0 raised to power 1 over 3। अब k की जगह 1 पुट करेंगे, now k is equal to 1, it will become z1 raised to power 1 over 3, k की जगह 1 पुट कर देंगे, cos 1 into 120 degree bracket close plus iota sin 1 into 120 degree, so cos 120 degree cos 120 degree plus iota sin 120 degree, इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos 120 तो कितना हो जाएगा, cos 120 1/√2